morning, students. Today we are going to study about the Africa, the physical features. In the previous video, we all have learned about the locations of the Africa, and in this video, we will talk about the physical features, and the physical features is first of all the mountain. Physical features. In physical features, we learn about the mountain. Okay. If we see the map of the Africa, we see the rough map of Africa, we will see the all the highlands, means all the plateaus or mountains are extended from this part to this part. Means the eastern part of the Africa is full of the mountain and the plateau. Okay, and you know from here the equator pass through it, means from the middle of the Africa equator pass. So this region from in this region all the mountains and plateaus are the volcanic origin, means they are formed by the volcanoes. Okay, now from the Ethiopia, this Ethiopia is a country. From the Ethiopia to the South Africa, that is the Drakensberg. Ethiopian highland to Drakensberg, all the mountains and the plateaus are extended. From Ethiopian highland to Drakensberg highland. Okay, means the highland of Africa extended from Ethiopian highland to Drakensberg. Now, these Ethiopian highlands are formed by the volcanic eruption. These highlands, Ethiopian highland means all the mountains and plateaus located near the equator are volcanic mountains in South Africa. Sorry. All the highlands all the highlands, mountains or plateaus are formed by the volcanic eruption. Okay, and the highest mountain of this region, highest mountain of the Africa is Mount Kilimanjaro. Mount Kilimanjaro, which lies in the Tanzania and the eastern coast of the Africa. Okay. Now the second highest mountain is Kenya Mountain, which lies in the central Kenya, or it lies in the eastern coast of Africa. Okay, this Mount Kilimanjaro is approx 5,895 meter height, and in Kenya Mountain, which is the second largest mountain in the Africa, is 5,199 meters. Now, the next, other than these peaks, means other than the Kenya mountain and the Kilimanjaro, other mountains are Revengers and Elgon. Here, this is Elgon, which lies in the Uganda. Uganda is a country in which Elgon mountain located. Okay. Now, other than the eastern part of the Africa, here in the northwestern part, there is a mountain range, that is the Atlas, which is the coast of the Mediterranean Sea. And this Atlas is formed by the compression of the plates, means you can say this is a mountain, Young-Fall mountain. This is a Young-Fall mountain. You all have learned about the Young-Fall mountain. Young-Fall mountains are the mountains which are formed by the compression of the two plates. When the two plates come towards each other, they compress each other and form a mountain. That is the Young-Fall mountain. Okay, this is the Fall mountain, and young means the mountains having the sharp peak. जिसका भी पीक अभी बचा हुआ है, जिसका पीक शार्प है, उसको हम यंग बोलते हैं,
और फोल्ड माउंटेन का मतलब हो गया जो दो प्लेट्स के कंप्रेशन से बना हुआ है, वे जो प्लेट जब आपस में जब एक दूसरे के पास आते हैं उसके द्वारा जो कंप्रेशन से जो बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। तो एटलस माउंटेन जो है जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, जो मेडिटेरेनियन कोस्ट पे है, ये माउंटेन कौन सा फोल्ड माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है। ओके, नाउ द साउदर्न पार्ट, इन द साउथ Africa, South Africa, there is a mountain range that is a Drakensberg is a very important. Drakensberg, Drakensberg range lies in the southeastern coast of the South Africa. याद ये रखना है कि जो हाईलैंड है ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे है? तो आपके ईस्टर्न कोस्ट में है। उसके बाद कहाँ से कहाँ तक है? इथोपियन हाईलैंड से लेकर ड्रैगनबर्ग तक फैला हुआ है। और इसका जो माउंटेन पीक है वो आपको याद रखना है। ये आपका किलिमंजारो है जो तंजानिया में है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है। उसके अलावा आपका केन्या है जो सेंट्रल केन्या में आता है। एटलस है जो आपको कौन से एटलस माउंटेन जो है वो है आपका अल्जीरिया में, है ना। एटलस माउंटेन रेंज है तो वो लाइज इन द अल्जीरिया। ओके, now we will see the plateaus and the plains of the Africa. Let's see. Next one is the plateaus. The plateaus means South Africa का जो माउंटेनियस रीजन था वो कहाँ था? इथोपिया। यहाँ इथोपिया से लेकर ड्रैगनबर्ग था और इसी रीजन में प्लेट्यूज थी, पूरा प्लेट्यूज भरा हुआ है। मीन्स द मोस्ट पार्ट ऑफ द अफ्रीका इज फुल विथ द प्लेट्यूज हैविंग द डिफरेंट हाइट्स। The eastern part, the central part, and the southern part. The eastern part, central part, and southern part means this whole part is covered with a large number of plateaus. Okay, like Tanzania, Kenya, Ethiopian means जितने भी हम लोगों ने अभी पढ़ा था माउंटेन्स में इथोपियन हाईलैंड्स है, तो इथोपियन हाईलैंड मींस नॉट देयर ओनली अ माउंटेन, देयर इज आल्सो लार्ज नंबर ऑफ प्लेट्यूज, स्मॉल प्लेट्यूज एंड द हाई प्लेट्यूज। ओके, केन्या, ड्रैगनबर्ग, सारे के सारे जो है वो प्लेट्यूज से भरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं नील रिवर। यहाँ पे नाइल रिवर जो है वो यहाँ पे बहुत सारे लेक्स हैं, है ना, बहुत सारे लेक्स हैं। इस लेक से होते हुए जो मेडिटेरेनियन सी में जो जाती है तो इसके वैलीज में भी बहुत सारे क्या प्लेट्यूज है। The plateau is channeled from Atlantic Ocean in the west. Means here this is the Atlantic Ocean. Atlantic Ocean यहाँ पे है। Atlantic Ocean से लेकर नाइल वैली जो है आपका, ये वाले सारे रीजन जो है क्या कहलाते हैं आपका? नाइल वैली कहलाते हैं। नाइल रिवर के जो अगल बगल का जो रीजन है वो नाइल वैली कहलाता है। तो वहाँ से मीन्स यहाँ अटलांटिक ओशियन से लेकर नाइल वैली तक ये पूरा फैला हुआ है, यहाँ तक पूरा एक्सटेंड है। उसके बाद जो नॉर्दर्न पार्ट सहारा डिजर्ट, दिस पार्ट इज द सहारा डिजर्ट। ये क्या है? सहारा डिजर्ट है। सहारा डिजर्ट से लेकर जो ड्रैगनबर्ग तक का जो रीजन है यहाँ तक भी प्लेटिंग फैला हुआ है, जो 2000 फीट टू 4000 फीट तक का हाइट का है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, द प्लेट्यूज जो है यहाँ का बहुत ज़्यादा शार्पली एंड स्टीपली है। शार्पली मीन्स they are very steep, they have a very steep slope from the plains and from the coastal areas, coastal region। बहुत सारे स्लोप्स हैं। और जो ड्रैगनबर्ग है, ड्रैगनबर्ग माउंटेन जो है वो भी क्या है? कोस्टल रीजन में बहुत ज़्यादा स्लो है, स्टीपली स्लोप है उसका। और इसका नाम क्या है? कैरूस के नाम से भी जाना जाता है। कैरूस, KAROOS, कैरूस। ओके, now these plateaus lies in Kenya, Tanzania, Uganda, Somalia, and other countries. Now let's see the plains of the South Africa.
Next one is the Great Rift Valley. The Great Rift Valley, actually this is the valley which is formed when the two rifts of two parallel rifts get synced. जब दो रिफ्ट जो है, जब पैरेलल रिफ्ट जब सिंक हो जाता है, उसके बीच का स्पेस, जैसे ये वाला कोई इसके बीच का जो पार्ट है अगर वो सिंक हो जाता है, अंदर दब जाता है, तो दो साइड में क्या होता है, वो हाई वॉल बन जाता है और इसके बीच क्या होता है, वाटर का फ्लो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेट वैली करते हैं, ग्रेट रिफ्ट वैली करते हैं। और ये जो अफ्रीका का है, बहुत ही फेमस, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, आप बोल सकते हैं जो फीचर है वहाँ का, अफ्रीका का, दिस इज द ग्रेट फीचर ऑफ द अफ्रीका। ओके, when the land between two parallel rifts sink, it is called rift valley, and in the rift valley the broken edges stand on the both sides like a steep wall. अगर हम बात करते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली का, तो यह जो है अफ्रीका का जो ईस्टर्न साइड में, यह ईस्टर्न साइड में फैला हुआ है, ईस्टर्न पार्ट में फैला हुआ है, और इसके मेनली दो ब्रांच है। रिफ्ट वैली का दो ब्रांच है, एक ब्रांच जो अफ्रीका में है और दूसरा ब्रांच चला जाता है कहाँ पे, तो एशिया में चला जाता है। और जो अफ्रीका में है वो आपका लेक मलावी, लेक मलावी जो है, मैंने बोला था कि जहाँ से नील रिवर ओरिजिनेट होता है, जहाँ से निकलती है, उसके आसपास में बहुत सारे क्या है, लेक्स हैं। तो वहीं पे एक लेक है आपका लेक मलावी, मीन्स साउथ पार्ट, साउदर्न पार्ट में ही आता है, लेक मलावी है। तो लेक मलावी से लेकर रेड सी, लेक मलावी से लेकर ये रेड सी तक जो फैला हुआ है, ये जो आपका ये ब्रांच हो गया जो अफ्रीका में है। दूसरा ब्रांच जो है गल्फ ऑफ सुएज, हम लोग जो कल बात किए थे, सुएज कैनल की बात किए थे, तो वहीं पे आपका गल्फ है जिसका नाम सुएज है। तो गल्फ ऑफ सुएज से लेकर ये रेड सी तक जाता है। रेड सी कहाँ पे है, तो एशिया में। तो गल्फ ऑफ सुएज से लेकर रेड सी तक जाता है दूसरा ब्रांच। तो ये दो ब्रांच इसका हो गया, इसको याद रखना है, एक्सटेंशन याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो it stretches from the Lake Malawi in the south to the Red Sea in the north, and from the Gulf of Suez to the Red Sea in the Asia. Okay, these valleys are formed by the volcanic activities. Volcanic activity के कारण ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली है, तो ग्रेट रिफ्ट वैली किससे बना हुआ है, वोल्केनिक इरप्शन के कारण बना हुआ है। Many parts of the Great Valley are occupied by large freshwater lakes. ये जो ग्रेट वैली है, यहाँ पे बहुत सारे फ्रेश वाटर लेक है, और इस फ्रेश वाटर लेक में आपको याद नाम रखना है, मलावी, मलावी है, रुकवा, कीवो, अल्बर्ट, एडवर्ड एंड तुर्काना। ये सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक है जो अफ्रीका का है, आपको इसका नाम याद रखना पड़ेगा। एग्जामिनेशन में से क्वेश्चन क्या पूछेगा, what is the rift valley, how it is formed, or from where and where, means it is write the extension of the rift valley. Next question, write the some fresh water lake of the rift valley। और एक नया चीज है आपका लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया is also fresh water lake, and this is the largest fresh water lake of the Africa, but it not lie in the Rift Valley. ओके, आपको याद रखना है कि लेक विक्टोरिया क्या है, एक फ्रेश वाटर लेक है जो पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। ओके, now the next topic is the desert and the plain. Let's see. अगर हम बात करते हैं डिजर्ट का, तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजर्ट आपका अफ्रीका में मिलता है। मीन्स पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डिजर्ट आपने नाम सुना होगा सहारा डिजर्ट का। इस डिजर्ट आपका इसी अफ्रीका में है जो नॉर्दर्न पार्ट में है। मीन्स पूरे अफ्रीका का 1/3 पार्ट इज कवर्ड विद द प्लेट्यूज, और दिस इज द
है extremely hot and a dry sorry, extremely hot and a dry desert. 1/3 part is covered with the desert. ये क्या है आपका, चूंकि ये टोरियल रीजन में है, टोरिटियोर में आता है। आपने हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इक्वेटर पास करता है यहाँ से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है, और पूरा ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ द अफ्रीका लाइन बिटवीन द टोरिड रीजन। तो टोरिड रीजन में जब आता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा गर्मी होगी, तो स्वाभाविक है। तो इसके कारण से यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ा डिजर्ट है, बहुत ज्यादा डिजर्ट है। मीन्स ऑलमोस्ट पार्ट इज कवर्ड विद द डिजर्ट, and the northern part of the Africa lies one largest desert, that is the Sahara Desert. इसके अलावा सहारा डिजर्ट के अलावा बहुत सारे डिजर्ट है जो हम लोग देखते हैं, और ये जो सहारा डिजर्ट है वो अटलांटिक ओशन से लेकर रेड सी तक फैला हुआ है। अटलांटिक ओशन से रेड सी तक फैला हुआ। मैप में देखिएगा, देखिए यहाँ पे मैं मैप दिखा रहा हूँ। Here you can see the map. The northern part means this part is Sahara Desert. Other deserts are here the Kalahari Desert, Namib Desert. बहुत सारे डिजर्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। देखिएगा जो नॉर्दर्न पार्ट जो है इसका सहारा डिजर्ट कितना बड़ा है। उसके बाद नीचे में आपका जो है कलाहारी डिजर्ट दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद क्या है, नामीब डिजर्ट है। इसके अलावा जो है नूबियन डिजर्ट है, वेस्टर्न डिजर्ट है। बहुत सारे डिजर्ट आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि लोकेट द डिजर्ट्स ऑफ द अफ्रीका, तो आपको याद रखना पड़ेगा लिबियन डिजर्ट जो लीबिया में है। लीबिया कहाँ पे है, आपको नॉर्दर्न पार्ट में लीबिया है, तो नॉर्दर्न पार्ट में आ जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आता है। फिर वेस्टर्न डिजर्ट है, न्यूबियन डिजर्ट है, कलाहारी डिजर्ट है। इस सारे डिजर्ट का नाम आपको याद रखना है। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा करते हैं, इसकी बात करते हैं। अगर कलाहारी डिजर्ट की बात करते हैं तो कलाहारी डिजर्ट भी जो आपको मिल जाएगा आपका साउथ अफ्रीका के आसपास में मिलेगा, ये साउथ अफ्रीका में। तो ये जो कलाहारी डिजर्ट है ये भी बहुत बड़ा डिजर्ट है। मीन्स सहारा डिजर्ट इतना बड़ा तो नहीं है, पर बहुत बड़ा डिजर्ट भी है। ओके, इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, तो प्लेन ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। ओके।